Negative, sir. Reading you How too. are you reading? Victor Tango Reading Papa two. Romeo. अच्छा, रीडिंग एट Reading 2, two, sir. कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, okay. Papa Romeo Kilo, please let me know that till lecture 12 you were present in earlier days. पोजीशन रिपोर्ट हो गया था आपका कवर? Yes, sir. Yes, no, anything? Then please do let me know पोजीशन रिपोर्ट के 5 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से पैरामीटर पोजीशन रिपोर्ट में नोटिफाई किए जाते हैं. Sorry, नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है. ठीक, okay, means till lecture 9 you were there in the class and I need to take it again from position report. ठीक है, that one is new topic, we'll start from today only. Done, just have a little focus. Till lecture 9 emergency calls and all, it has been completed. Mayday and pan, every type of call has been completed, right? Affirm. Till lecture 9 just go through the topic one by one. I am going to one by one, please do let me know अगर यहाँ तक के टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन हो तो. ठीक है, lecture 5 it was till lecture 5 it was very basic, nothing to say anything. ठीक है, chart reading techniques I had known to this, that is clear. Reciprocal of runway you know, air traffic circuit you know, and mayday and pan call, these topics also has been provided when you were earlier in the classes. But I'll ask some question over air traffic circuit. ठीक है, this is the runway. ठीक है, I am giving some color codes to the edges and please do let me know कि उस वाले कलर का edges क्या कहलाता है, what are the name of that color. Okay, red color edge. ठीक है, this is air traffic circuit. तो जिस पोर्शन में मैंने रेड कलर से मार्क किया है उस रेड कलर के एजेस को क्या बोलते हैं, कौन सा लेग? Flag. Which one? Rate, sir. Take off flag. टेक ऑफ लेग, पैर वाला लेग. ठीक है, LEG. Okay. Take flag. लेग. Yes, this is take off. This is take off leg. Very good. Now this green color. Crosswind leg. Crosswind leg. Very good. This blue color. Downwind leg. Downwind leg. Good one. This black color. I think base leg. It is base leg. ठीक है. And this one, orange color. Final. Final. Okay. Final have. Yes, very good. कितना होता है डिस्टेंस और क्या क्या बोलते हैं? 8 किलोमीटर माइल होते हैं, जैसे कि दो टाइप में उसको होगा, एक 4 होगा, एक दूसरा 4 होगा. जो 4 वाला होगा लॉन्ग होगा और दूसरा 4 फाइनल जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस में होगा. हाँ, उसको बोलते हैं लॉन्ग फाइनल्स और शॉर्ट फाइनल्स. ठीक है, डिस्टेंस लॉन्ग शॉर्ट नहीं होता, उसका नाम है लॉन्ग फाइनल, शॉर्ट फाइनल. पहला 8 से 4 तक लॉन्ग फाइनल, देन 3 to 1 इट इज शॉर्ट फाइनल. ठीक है, so these are the things regarding finals. Air traffic circuit. Okay, today we'll have a look on position report. For that I'll seek your attention towards the classes note. There I had described the position report, so from there we'll understand it nicely. ठीक है, just have a little look. ठीक है,
something is known as position report. It means whenever you are on the field or you are in the air, कहीं भी मेरा वॉइस ब्रेक हो, मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो, प्लीज डू लेट मी नो. Whenever you are on the field and whenever you are in the air, you can identify yourself that you are placed somewhere. आप कहीं पे अपना कुछ पोजीशन, नेविगेशन या लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो. लाइक सपोज आप बीच रोड में कहीं पे घूम रहे हो, देन यू कैन हैव गूगल मैप टू आइडेंटिफाई योर करंट लोकेशन. Similarly, when aircraft is flying in the air or moving on the ground, they can have some references जहां से वो अपना पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो एक्चुअल में कहां पे है. When aircraft is on ground, then वो अपना पोजीशन, हम लोग बोलते हैं ना करंट पोजीशन टैक्सीवे चार्ली, मींस हमारा करंट पोजीशन है टैक्सीवे चार्ली पे, ग्राउंड पे हम टैक्सीवे चार्ली पे मूव कर रहे होते हैं. दैट्स वी आर सेइंग करंट पोजीशन ऑन टैक्सीवे चार्ली, करंट पोजीशन ऑन एप्रोन 2 वे नंबर 6, लाइक दैट. सो व्हेन वी आर ऑन द ग्राउंड, टैक्सीवे का नंबर, एप्रोन नंबर, स्टैंड नंबर, टैक्सीवे लिंक्स का नंबर, रनवे नंबर, लाइंड अप फॉर डिपार्चर ऑन रनवे 27, मतलब ये भी हमारा पोजीशन आइडेंटिफाई कराएगा. एयरक्राफ्ट का जोन आइडेंटिफिकेशन, वी आर ऑन आइसोलेशन बे, वी आर ऑन हाई पावर बे, वी आर ऑन डंबेल एरिया. ठीक है. पेवमेंट डेजिग्नेशन, हर एक पक्का, ठीक है, एयरपोर्ट पे जो भी पक्के मार्क्स रहेंगे या फिर जो भी पक्के पोजीशंस रहेंगे, कच्चा मतलब मिट्टी के जी रहेंगे या जो घास रहेगा, ठीक है, ऐसे सरफेसेस को बोला जाता है कच्चा, अनपेव्ड. बट जो भी कॉन्क्रीटेड रहेगा, जो भी सीमेंटेड रहेगा, उसको बोला जाता है पेव्ड. तो हर एक पेव्ड सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ मार्किंग रहती है, भले वो किसी टाइप का डिजाइन हो सकता है, कुछ नंबर हो सकते हैं. लाइक आपका रनवे होल्डिंग पॉइंट, उसमें जेब्रा क्रॉसिंग जैसा इस टाइप से मार्किंग रहते हैं, येलो एंड ब्लैक. तो पेवमेंट का डेजिग्नेशन, पक्के सरफेसेस पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे. लाइक रनवे पे लिखा होता है 27, तो ये भी हमारा एक पोजीशन हो गया. ठीक है. या अगर हमारे पेवमेंट पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, जहां पे हम पार्क हैं वहां पे लिखा हुआ नहीं है, या फिर जो लिखा हुआ वो मिट गया है, या फिर जहां पे हम पार्क हैं उसके सामने पिलर्स पे लिखे रहते हैं बे नंबर या फिर एप्रॉन या स्टैंड नंबर, अगर वो भी आपको क्लियरली विजिबल नहीं है या आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप अपने नियर बाय बिल्डिंग्स से भी अपने आप को लोकेट कर सकते हो. ठीक है. पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ हैंगर, पार्क्ड नियर टू द बे नंबर 6. ठीक है. करंट पोजीशन टुवर्ड्स टर्मिनल बिल्डिंग, करंट पोजीशन लेफ्ट ऑफ बिल्डिंग अल्फा 3, इस टाइप से. तो आप अपने आसपास के एयरक्राफ्ट, आसपास के बिल्डिंग्स, आसपास के लोकेशन से भी अपना पोजीशन डेजिग्नेट कर सकते हो. अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर करंट पोजीशन, तो इधर ग्राउंड पे कुछ लिखा रहेगा या आपके सामने कुछ लिखा रहेगा. अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, किसी भी टाइप का मार्किंग या बैनर्स नहीं लगे हैं, तो नियर बाय बिल्डिंग्स, नियर बाय एस्टेब्लिशमेंट के रेफरेंस से अपना पोजीशन बताइए. मैं क्लियर सो फार? Leo. Yes, no, anything? Papa Romeo Kilo, is this clear to you? How you will report your position when you are on ground? नियर बाय में अगर कोई भी रहे उसमें पोजीशन, मतलब कि जैसे कि कोई बिल्डिंग जो भी है नियर बाय में रहे. Yes. So you can report that also. Suppose हम जिस पार्किंग वे पे खड़े हैं वहां पे ग्राउंड का लिखा हुआ है, जैसे पार्किंग नंबर 13, ये मिट गया या फिर ये थोड़ा सा ब्लर है, ये हेजी है, आपको क्लियरली पता नहीं चल रहा है, तो आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ, क्या है, कोई बिल्डिंग दिख गई अल्फा 3, सो यू कैन से पार्क्ड राइट ऑफ बिल्डिंग अल्फा 3, like this. Got that? गेटिंग से. ठीक है. Like we are saying it our normal life also. Suppose we are on a railway platform
और वी आर टू द एनी स्टेशन और वी आर अंडर एनी ओवर ब्रिज, तो हम लोग पिलर नंबर्स बोलते हैं ना कि पिलर नंबर 63 के पास आ जाओ, वहां पे हम लोग रुके हुए हैं। या फिर वी कैन से कि मंदिर के सामने आ जाओ, दैट टेम्पल इन फ्रंट ऑफ दैट, वी आर सेंडिंग आवर पोजीशन कि हम यहाँ पे पार्क हैं, यहाँ से तुमको रेफरेंस लेना है। सिमिलरली व्हेन यू आर ऑन ग्राउंड, दीज आर द रेफरेंसेज। कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए वेल एंड गुड, नहीं लिखा हुआ मिला तो नियर बाय एयरक्राफ्ट, नियर बाय हैंगर, नियर बाय बिल्डिंग के नंबर्स, इन सब चीजों से अपना पोजीशन रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? Is that clear now? ठीक है। Then when you are in air, ठीक है, यहाँ पे ऑन एयर नहीं होगा, when you are in air, जब आप इन एयर हो, जब आप एयरबोर्न हो, जब आप हवा में हो, तो अपना पोजीशन रिपोर्ट आप कर सकते हो along with these पैरामीटर्स जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला पैरामीटर योर करेंट अल्टीट्यूड, हमारे फ्लाइट प्लान में लिखा होता है ना, फ्लाइट लेवल 320, फ्लाइट लेवल 250, तो ये जो आपका करेंट अल्टीट्यूड है ये आपका पोजीशन बताता है। तो आपके पोजीशन रिपोर्ट के 5 पैरामीटर्स में से, ठीक है, पोजीशन रिपोर्ट के 5 एसेंशियल पैरामीटर्स, उसमें से एक पैरामीटर हो गया आपका करेंट लेवल या आपका करेंट अल्टीट्यूड। दूसरा आपके रूट का कॉल साइन, किस रूट को फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, किसी भी एयरपोर्ट से आप यहां से दूसरे जगह जाओगे तो कोई ना कोई रूट रहेगा ही, उसी रूट का कॉल साइन आपका दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर रेडियल या हेडिंग, आप जिस रूट पे फ्लाई कर रहे हो उस रूट का रेडियल क्या है किसी एयरपोर्ट के रेफरेंस से, वो वाला रेडियल। चौथा करेंट टाइम, आपके प्लान में डिपार्चर टाइम लिखा होता है, सो डिपार्चर टाइम के बाद जितनी दूर आप फ्लाई किए हो वहां तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा, वो वाला डिपार्चर टाइम। एंड पांचवा डिस्टेंस फ्रॉम एनी एमआरपी और डिस्टेंस फ्रॉम एनी वीओआर, किसी भी नॉन वीओआर पॉइंट से अपना डिस्टेंस, कि हम नागपुर से 50 नॉटिकल माइल दूर हैं या हम नागपुर को क्रॉस करके 50 नॉटिकल माइल आगे निकल गए हैं, इस टाइप से। तो 5 पैरामीटर्स आर एसेंशियल फॉर पोजीशन रिपोर्टिंग। व्हाट आर दोज? लेट मी शो यू ऑन द चार्ट। पोजीशन रिपोर्ट को समझने के लिए चार्ट का रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। सो लेट मी गो टू द चार्ट, यू विल अंडरस्टैंड दैट इजीली। ठीक है, वी विल ओपन वन ऑफ द चार्ट फॉर योर रेफरेंसेस। ठीक है, नाउ कैसा रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन या फिर पोजीशन रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, जस्ट हैव अ लुक ऑन द चार्ट। सपोज उदयपुर, उदयपुर इज विजिबल टू ऑल, प्लीज डू लेट मी नो। उदयपुर विजिबल है सबको? यस सर। So I am making a red dot. Everyone let me know कि red dot is visible to all. After उदयपुर मैंने एक रेड कलर का डॉट बनाया है, प्लीज कंफर्म। यस सर। हाँ, सो सपोज आपने उदयपुर से डिपार्चर लिया और एट प्रेजेंट टाइम आप इस रेड एंड ग्रीन डॉट के ऊपर हो। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आप फ्लाई कर रहे हो, आपका एयरक्राफ्ट इस पोजीशन पे है, तो आपका पोजीशन रिपोर्ट कैसे होगा, आप क्या क्या अपने पोजीशन में रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो उसके लिए क्या क्या रिपोर्ट करेंगे, जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहले आपका करंट अल्टीट्यूड, सबसे पहला पैरामीटर क्या था, लेवल। आपका करंट अल्टीट्यूड कहां से मिलेगा, फ्लाइट प्लान से, फ्लाइट लेवल 320। दूसरा किस रूट पे आप फ्लाई कर रहे हो, तो रूट आपका देखो यहाँ पे क्या है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे आप फ्लाई करोगे उसमें रूट का कॉल साइन लिखा हुआ ही रहेगा। ठीक है, तो रूट हो गया इसमें आपका विस्की 13 नॉर्थ। डन। तीसरा पैरामीटर क्या है आपका, रेडियल। आप जिस रूट पे फ्लाई कर रहे हो उस रूट का रेडियल क्या है, तो आपका रेडियल हो गया 030। डन। फिर आया चौथा डिस्टेंस। आप इस रेड डॉट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो आप बोल सकते हो कि यू आर
सर्टेन डिस्टेंस ले लेते हैं फॉर नाउ, 70 नॉटिकल माइल उदयपुर से बाहर की तरफ आ गए हो, इस रेड डॉट को उदयपुर से 70 नॉटिकल माइल दूर आ चुके हो, या फिर आप ये बोल सकते हो कि उकबाब पहुंचने में आपको 30 नॉटिकल माइल और बाकी है। तो आपका डिस्टेंस दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक या तो आप किसी से कितना दूर जा चुके हो, या फिर आप किसी के कितने नजदीक आ चुके हो, किसी इन द सेंस एनी एमआरपी और एनी वीओआर, किसी भी स्टेशन से आप कितने डिस्टेंस पे हो। तो आइदर आप रिपोर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ फ्रॉम एंड इन द फॉर्म ऑफ टू, कि उकबाब पहुंचने में 30 नॉटिकल माइल बाकी है, या फिर उदयपुर से 70 नॉटिकल माइल आगे आ चुके हैं। Am I clear over this? सर थर्ड पैरामीटर थोड़ा एक बार और रिपीट करना, हीडिंग वाला। थर्ड पैरामीटर रेडियल और डिस्टेंस, रेडियल हेडिंग, हीडिंग, हाँ रेडियल। हाँ हेडिंग, नॉट रीडिंग, हेडिंग, ठीक है। नाउ जब आप किसी रूट पे फ्लाई करते हो तो उस रूट का कुछ ना कुछ एंगल रहता है, राइट। ये हमने पढ़ा था जब रनवे डेजिग्नेशन देख रहे थे और एयर ट्रैफिक सर्किट। तो ये वाला रूट अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ के रिस्पेक्ट में कितना एंगल बना रहा है, वो हमारा होता है रेडियल, ठीक है। तो इस रूट जब हम विस्की 13 नॉर्थ पे फ्लाई कर रहे हैं तो हमारा रेडियल क्या है, 030, जो कि चार्ट में लिखा होता है। दिस क्लियर? इफ वी वेयर फ्लाई ऑन विस्की 13 साउथ तो हमारा रेडियल हो जाएगा 048। इफ वी विल फ्लाई ऑन विस्की 13 देन हमारा रेडियल हो जाएगा 218। मैं क्लियर? यस सर। Then distance can be represented by two terms. Suppose we are on this red dot, so we can say कि we are 20 nautical mile to उकबाब, यानी उकबाब पहुंचने में 20 nautical mile बाकी है, या फिर we can also say कि we are 70 nautical mile out from उदयपुर, उदयपुर से 70 nautical mile दूर आ चुके हैं। सपोज आप कहीं पे जर्नी आप स्टार्ट करते हो, तो जब आप अपने इनिशियल फेज में रहते हो, सो यू कैन से ना कि अभी बैंगलोर से निकला हूं, ठीक है, एंड व्हेन यू रीच नियर टू योर होम, तब आपका सेम पोजीशन रिपोर्टिंग का मोड चेंज हो जाता है कि घर पहुंचने वाला हूं। जब आप अपने डिपार्चर से नजदीक हो तो डिपार्चर के रेफरेंस लेके आप बताते हो कि अभी अभी तो बैंगलोर से निकला हूं, भले आप बैंगलोर से 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हो, लेकिन आप रेफरेंस देते हो बैंगलोर से, यानी आपके सोर्स लोकेशन से। तो जब आपका डिपार्चर है उदयपुर से, तो उदयपुर के रेफरेंस से एक पोजीशन को डिनोट कर सकते हो कि उदयपुर से 70 किलोमीटर बाहर आ चुके हैं। एट द सेम टाइम दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी रिपोर्टेड एज कि उकबाब पहुंचने में 20 नॉटिकल माइल बाकी है। Am I clear? Yes, Yes, no, sir. anything? Am I clear for this? ठीक है। Then the next one is time, ठीक है। टाइम आपका डिपार्चर टाइम लिखा रहता है आपके प्लान में। सो फ्रॉम दैट डिपार्चर टाइम टू रीच द पोजीशन आपको कितना टाइम लगा, ठीक है। 10 बजे डिपार्ट किया, यहां तक पहुंचने में हमको 30 मिनट लगा। दिस इज टोटल हाइपोथेटिकल, आप अपने मन से टाइम बता सकते हो। तो करेंट टाइम 1030 कि 10 बजे हमने डिपार्चर किया था, बट जिस पोजीशन पे अभी हूं वहां पहुंचने में आधे घंटे लगे हैं। सो करेंट टाइम इज 1030। Am I clear now? यस सर। ठीक है, we'll take to the other chart, just have a look there, ठीक है। सेम पोजीशन रिपोर्ट कॉल ओनली। दूसरे चार्ट में एक हमको बेनिफिट मिलता है कि वहां पे डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन लिखे हुए रहते हैं, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम हमको वहां पे कंफ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। रेस्ट ऑल आर सेम। सो विल अगेन ओपन द चार्ट नंबर 3 ओनली, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल बी बैक इन अ फ्यू minutes, more not more than one.
Okay, how I'm audible to everyone now? Audible. ठीक है. So in this chart you can see we have a benefit of distance. कि जो पुराने वाले चार्ट हैं इसमें आपके डिस्टेंस के इंफॉर्मेशन लिखे हुए रहते हैं. सो हाउ दैट विल वर्क, जस्ट हैव अ लुक. ठीक है, अभी क्या है, अगेन ऑन द रेड डॉट ओनली. ठीक है, इफ वी आर ऑन दिस रेड डॉट देन वी कैन रिपोर्ट आवर अल्टीट्यूड. कहां से मिलेगा? फ्लाइट प्लान से, फ्लाइट लेवल 320. नेक्स्ट, रूट का कॉल साइन. रेड डॉट का रूट क्या है? विस्की 13 नॉर्थ. अगला रेडियल, विस्की 13 नॉर्थ का रेडियल क्या है? 030. देखो. फोर्थ, डिस्टेंस. इस डिस्टेंस को आप बोल सकते हो उदयपुर टू उकबाब. टोटल कितना है? 170. सो दिस इज बेस्ड ऑन योर कैलकुलेशन. इफ आई एज्यूम कि ओवर दिस रेड डॉट वी आर 70 नॉटिकल माइल फ्रॉम उदयपुर, यानी उदयपुर से 70 नॉटिकल माइल दूर आ गए, तो बाकी बचा हुआ कितना रह गया अपने पास? 40. सो टू दिस रेड डॉट वी कैन से 70 नॉटिकल माइल आउट फ्रॉम उदयपुर या फिर 40 नॉटिकल माइल इन फ्रॉम उकबाब. एम आई क्लियर फॉर दिस? अंडरस्टूड द पॉइंट? Clear. डिस्टेंस वाला. And then it will come the time. Time is totally our hypothetical calculation. अगर हमारा डिपार्चर टाइम है 10 बजे, so we can say कि इस रेड डॉट तक पहुंचते पहुंचते हमको 10:30 बज गए, आधे घंटे और लग गए. Is this okay now? Clear. फ्लाइट लेवल भी तो हाइपोथेटिकली हो रहा है ना? No, flight level is from रूट आपके फ्लाइट प्लान से. ठीक है. हाँ वही, हाँ. So I am writing it again. ठीक है. First, your current level कहां से आएगा? फ्लाइट प्लान से. ठीक है, करंट लेवल फ्लाइट प्लान से. दूसरा आपका क्या है पैरामीटर? रूट का कॉल साइन. कहां से मिलेगा? चार्ट से. ठीक है. तीसरा रेडियल, ये कहां मिलेगा? चार्ट से. डिस्टेंस कहां से मिलेगा? चार्ट से. या फिर हाइपोथेटिकल, अगर पुराना चार्ट है तो चार्ट पे रहेगा, और अगर वर्जन 2 है तो हाइपोथेटिकल, अपने मन से. और पांचवा पैरामीटर, ठीक है, आपका है टाइम. दिस इज हाइपोथेटिकल, अपने मन से कैलकुलेट करके बोलना रहता है. डन. सो आई एम रिपोर्टिंग वन पोजीशन रिपोर्ट. प्लीज डू लेट मी नो इफ यू आर क्लियर विद दैट पोजीशन रिपोर्ट और नॉट. ठीक है, प्लीज डू लेट मी नो. इसको रोटेट करता हूं. I'll report here only so that you all can understand how it will be reported. ठीक है. So just have a look. If I say I am on the black dot, ठीक है, ये ब्लैक डॉट नागपुर के बाद ये वाला ब्लैक डॉट. इज दिस विजिबल टू ऑल? प्लीज डू लेट मी नो आफ्टर नागपुर दिस डॉट इज विजिबल टू ऑल? Visual. ठीक है. सो ओवर दिस पॉइंट वी कैन रिपोर्ट आवर पोजीशन एज सच. ठीक है, करेंट पोजीशन फ्लाइट लेवल 320 जैसा आपके फ्लाइट प्लान में दिया हुआ है. ठीक है. रूट गोल्फ 450, रेडियल 075, 120 nautical mile, outbound, wait for the term, I'll explain,
120 nautical mile outbound Nagpur. Time now 10:45. क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने बोला? पहला बोला लेवल 1, दूसरा रेडियल, दूसरा रूट, तीसरा रेडियल, चौथा डिस्टेंस, एंड फिफ्थ वन इज योर करंट टाइम. So these 5 parameters are essential. अब डिस्टेंस में दो चीज आती हैं. क्या? हैव अ लुक. अगर हमने इस रेड डॉट को बोला कि नागपुर से 120 नॉटिकल माइल बाहर की तरफ है, सो इस पॉइंट को बोला जाता है आउटबाउंड, और शॉर्ट में लिख सकते हो OB, आउटबाउंड. वी कैन से 120 नॉटिकल माइल आउटबाउंड नागपुर. एम आई क्लियर? या फिर आप इसी पॉइंट को लिख सकते हो एज इनबाउंड. इनबाउंड मीन्स टुवर्ड्स एनी स्टेशन. 30 नॉटिकल माइल इनबाउंड किनकी. एम आई क्लियर ओवर द डिस्टेंस टर्म? यस सर. ठीक है, जस्ट टेक इट लिटिल मोर क्लोजर. ठीक है, फॉर द डिस्टेंस टर्म, इफ वी आर एट दिस रेड डॉट, सो वी कैन से, सपोज डिस्टेंस पैरामीटर इज नॉट गिवन, बट वी हैड एज्यूम कि ये वाला डिस्टेंस जो है हमारा, दिस विल बी अप्रॉक्स 100 नॉटिकल माइल. ठीक है, दिस इज हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन. वर्जन 2 में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, वर्जन 1 में आपको मिल जाएगा. सो ओवर दिस रेड डॉट, ठीक है, we can say 50 nautical mile outbound Nipad, or we can also say 50 nautical mile inbound Kinki, because this red dot is exactly in the middle. So एक distance को दो term में, in the reference of outbound and in the reference of inbound, both the way it can be reported. Is it clear? Clear. ठीक है. Then if it is clear, then we'll practice some of the call types over the position report. ठीक है, and reporting of all 5 parameters are essential. इस 5 में से एक भी पैरामीटर अगर आप मिस करोगे तो आपका नंबर डिडक्शन होगा एग्जाम में. ठीक है, सीधा सा लॉजिक है. नाउ क्वेश्चन कैसा आएगा? जस्ट हैव अ लुक. क्वेश्चन, Sierra Oscar Hotel, you are going to report this call. All parameters are hypothetical. जो प्लान लेना है लो, जिस भी टाइप का एयरक्राफ्ट उठाना है उठाओ. I need a position report. ठीक है, and question in front of you is, you are 120 nautical mile outbound Nagpur. Correction, outbound नहीं रहेगा. क्वेश्चन में लिखा रहेगा either in the form of from or in the form of to. So you are 120 nautical mile from नागपुर. नागपुर को NNP. थोड़ा सा क्वेश्चन पे और ध्यान दो. अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है अवे फ्रॉम, यानी आप नागपुर से 120 नॉटिकल माइल बाहर जा चुके हो, आउटबाउंड. अगर क्वेश्चन में लिखा है टू मतलब टूवर्ड्स, यानी आप नागपुर के तरफ हो, इनबाउंड. तो आउटबाउंड और इनबाउंड का यूज समझ में आया सबको? Yes. Then I'll need a position report call. Question is in front of you. You are 120 nautical mile from Nagpur. Sierra Oscar Hotel. Please go for the call. Delhi control. Is this Delhi control area? नागपुर है, नागपुर के पास खुद कंट्रोल है. अच्छा, नागपुर से. ओके. Is this chart visible to you? My screen is being shared, right? Yeah, chart is a little bit below. सर. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? नहीं, स्क्रीन शेयर हो रहा है लेकिन थोड़ा ब्लर है. ब्लर. How is it now?
जस्ट अ सेकंड, इट्स फ्रीक्वेंसी स्क्रीन. वो फ्रीक्वेंसी नहीं दिख रहा है, हाइपोथेटिकल ले लो एक Okay, सेकंड chart is with you, right? So open the chart number 2, version 2 का. ओके Okay, let me restart the app. It will be clear for you. Don't worry. How is it now? Is this visible? chart is already visible that but the fonts and the frequency is little bit small, the size of that chart is small, so we unable to see that chart. ठीक है. Then open the hypothetical chart number 2. ठीक है? Yeah, Version 2 वाला. There. You are 120 nautical mile from Nagpur. Nagpur control, Air India 921 on 119er, correction 123.9er, Airbus 320 IFR Nagpur to Jamshedpur, flight level 320, radial 075, route goal 450, 120 outbound Nagpur. 120 क्या? Sorry, 120 DME outbound Nagpur. Estimating Time now. time now 1100. Estimating Kinki 1130. Agrom 1145. ETA Jamshedpur 1200. Air India 921. ठीक है. Everyone, for now, just understand till this. पोजीशन रिपोर्ट में 5 पैरामीटर. फ्लाइट लेवल 320 कहाँ से आया? फ्लाइट प्लान से. रेडियल 05 कहाँ दिया हुआ है? रूट पे. रूट का कॉल साइन चार्ट पे. 120 DME या फिर 120 नॉटिकल माइल. जब आप IFR में फ्लाई करते हो तो डिस्टेंस आपको कौन बताता है? आपका DME. So either you can say 120 nautical mile outbound Nagpur, or you can say 120 DME outbound Nagpur, या फिर DME 120 outbound Nagpur. All are acceptable. Clear? So nautical mile के बदले DME बोल सकते हो when you are in flying under IFR. And next one is current time. Current time कहाँ से आएगा? Hypothetical based on the calculation. अगर आपका 10 बजे का डिपार्चर था तो आपने एज्यूम किया कि 120 नॉटिकल माइल फ्लाई करने में आपको 1 घंटे लग गए. दैट्स ऑल. ठीक है. उसके बाद का पैरामीटर देखेंगे. होप दीज 5 पैरामीटर्स आर क्लियर फॉर एवरीवन. ये 5 पैरामीटर क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके. नाउ विल लुक टू द नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि व्हेन वी आर रिपोर्टिंग आवर पोजीशन, ठीक है, देन these 5 parameters are the parameters of position report, but there are something which is known as estimates. estimate मतलब आप जिस जगह पे अभी खड़े हो वहां से अगले स्टेशन पे कब पहुंचोगे, कितनी देर में पहुंचोगे. हम लोग जब ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो बोलता है ना कि सो एंड सो ट्रेन नंबर इज कमिंग टू द प्लेटफॉर्म नंबर 2 इन 10 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स, कि 10 मिनट में आ रही है. कैसे पता चला? कि अभी वो कहीं दूर पे है और कुछ ना कुछ स्पीड से चल रहा है. तो विद द डिस्टेंस टाइम कैलकुलेशन दे हैड कैलकुलेटेड कि वहां से यहां पहुंचने में 10-15 मिनट और लगेंगे.
तो उसको बोलते हैं एस्टीमेट्स। ठीक है, विल लुक ऑन द चार्ट अगेन। तो एक हो गया एस्टीमेट। एस्टीमेट आपके पोजीशन रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। एस्टीमेट इज द पार्ट ऑफ योर पोजीशन रिपोर्टिंग। अब आप बोलोगे ये क्या मजाक है सर, पोजीशन रिपोर्ट और पोजीशन रिपोर्टिंग में क्या डिफरेंस है? सपोज वन ऑफ योर टीचर, ठीक है, इज देयर विद अस, और टेक एन एग्जांपल ऑफ मी ओनली। ठीक है, वेन एवर यू आर कॉलिंग मी यू कैन से अंकुश सर। ठीक है, लाइक दैट यू कैन से अंकुश सर, बट इज माई नेम अंकुश सर? नो, माई नेम इज अंकुश कुमार और अंकुश ओनली। सो मेरा नाम है अंकुश, बट विद द रिस्पेक्ट और विद द सैल्यूटेशन you can say me Mr. Ankush or Mr. Ankush Kumar या फिर अंकुश सर, like this. Similarly, पोजीशन रिपोर्ट में एस्टिमेट्स नहीं आता है, लेकिन जब हम पोजीशन रिपोर्ट करते हैं तो अपकमिंग स्टेशन पे कब पहुंचेंगे ये बताते हैं एज अ पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कि अभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं, अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके अगले 15 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। और जितने भी एमआरपी हमने देखे थे उसी का एस्टीमेट देते हैं कि अभी हम भोपाल पे प्लेस्ड हैं, कुछ देर बाद इंदौर जाएंगे, कुछ देर बाद पुणे पहुंच जाएंगे, लाइक दिस। ठीक है, सो वील हैव अ लुक ऑन द चार्ट कि हाउ द रिपोर्टिंग इज बीइंग डन। नेक्स्ट, अगर हमारा पोजीशन अननोन है या फिर हमारा एयरक्राफ्ट का नेविगेशन सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, then we will report our last known position, कि लास्ट टाइम जो हमको अपना पोजीशन याद है कि we were 20 nautical mile to भोपाल, फ्लाइट लेवल दिस एंड दिस, रेडियल दिस एंड दिस, टाइम वाज 1030। तब से लेके अभी तक नेविगेशन सिस्टम खराब है। तो जब हम अपना पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन में रहेगा नेविगेशन सिस्टम फेल, इन दैट केस वी विल रिपोर्ट आवर लास्ट नोन पोजीशन। We can also report our airspeed, but this is optional. If you want, you can report. If you don't want, leave that. Not required. ठीक है? So we have came to know कि estimates भी report करने हैं. How that will be reported? Have a look. With the same condition, I am going to report the position. ठीक है? दिस वन इज द चार्ट विद अस। ठीक है, एक रेड डॉट बनाता हूं उदयपुर के आगे, जहां के रिगार्डिंग मैं पोजीशन रिपोर्ट करूंगा। प्लीज डू लेट मी नो इफ दिस रेड डॉट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई ब्लर या हेजी पिक्चर नहीं, राइट? यस। क्लियर। सो अगर आप यहाँ पे फ्लाई कर रहे हो, सो यू कैन रिपोर्ट योर पोजीशन लाइक व्हाट, लाइक दिस। अहमदाबाद कंट्रोल, ये वाला एरिया अहमदाबाद के कंट्रोल में आता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अभी हम लोग अहमदाबाद कंट्रोल ही लेते हैं। अहमदाबाद कंट्रोल, ठीक है, जो भी हमारा करेक्ट टीसी रहेगा उसको रिपोर्ट करेंगे। अहमदाबाद कंट्रोल विस्तारा 798 ऑन 134.2, ये तो हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट एयरबस 320 IFR उदयपुर टू दिल्ली, डन। ये हो गया हमारा पूरा आइडेंटिफिकेशन। करेंट पोजीशन ऑन फ्लाइट लेवल 320, कहां से आया? फ्लाइट प्लान से। विस्की 13 नॉर्थ, यह है हमारा रूट। आप चाहो तो पैरामीटर को बोलने से पहले पैरामीटर का नाम ले लो, जैसे बोलोगे फ्लाइट लेवल 320 रूट विस्की 13 नॉर्थ, या फिर आप डायरेक्ट विस्की 13 नॉर्थ बोलो, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि ये रूट का कॉल साइन है। ठीक है, रूट विस्की 13 नॉर्थ। रेडियल, रेडियल में रेडियल बोलना है, उसको स्किप नहीं कर सकते। रेडियल या हेडिंग 030।
70 DME आउटबाउंड उदयपुर, आउटबाउंड को शॉर्ट फॉर्म में ओबी, आउटबाउंड उदयपुर, टाइम नाउ 1040। ठीक है, अब कहानी चालू होता है एस्टीमेट्स का। एस्टीमेट्स मतलब आगे कहां कहां जाएंगे, तो उस केस में बोलेंगे एस्टीमेटिंग। ठीक है, एस्टीमेटिंग, उसको शॉर्ट फॉर्म में आप EST डॉट लिख सकते हो, एस्टीमेटिंग। अगला देखो, रेड डॉट के बाद आप कहां पहुंचोगे, उकबाब, एस्टीमेटिंग उकबाब। अब यहां से आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होगा कि अगर हमने उदयपुर से इस रेड डॉट पे पहुंचने में 40 मिनट्स लिए, तो यहां से यहां, ठीक है, 110 नॉटिकल माइल में से ये टोटल 110 नॉटिकल माइल है। अगर 70 नॉटिकल माइल हमने 40 मिनट्स में कवर किए, तो बाकी के 30 नॉटिकल माइल और बाकी के 40 नॉटिकल माइल हम 30 मिनट्स और ले लेते हैं या फिर 20 मिनट्स ले लेते हैं। सो दिस इज आवर कैलकुलेशन। आपको क्या लगता है कि ये टोटल 110 में से फर्स्ट 70 आपने 40 मिनट्स लिए, 1040 आपने 40 मिनट लगाए, 10 बजे आपका डिपार्चर टाइम था, तो बाकी का 30 नॉटिकल माइल आप कितना लेोगे? सो आई एज्यूम कि 20 मिनट्स और लगेंगे। यस, यू आर फ्री। उकबाब 1100। देखो 10:40 में हमारा करंट टाइम है, 11 बजे उकबाब पहुंचेंगे, तो 20 मिनट हमने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट उकबाब के बाद क्या आता है, दीपास, DIPAS, दीपास। ये ऑलमोस्ट 100 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है। तो पहला नॉटिकल माइल हमने, या पहला 110 नॉटिकल माइल हमने ओवरऑल 1 घंटे में कंप्लीट किए, राइट। सो अगला 100 नॉटिकल माइल हम 1 घंटा और ले लेंगे। दीपास 1200। ठीक है, उसके बाद चिलेरकी, ये वाला दिख रहा है सबको, चिलेरकी, इसका डिस्टेंस है दीपास से चिलेरकी 60 नॉटिकल माइल। देखो 60 नॉटिकल माइल। तो ये वाला हम कितना टाइम लेंगे, जस्ट हैव अ लुक, चिलेरकी CHI, ठीक है, 1260 करेक्शन 1230, 30 मिनट और लिए। फिर आया हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, फिर आया हमारा अराइवल एयरपोर्ट दिल्ली। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ETA, जो हमारा फाइनल एस्टीमेट है उसको रिपोर्ट करते हैं ETA से। ETA मतलब एस्टीमेटेड, ठीक है, एस्टीमेटेड ED, एस्टीमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, कि हमारा जो अराइवल एयरपोर्ट है वहां पे पहुंचने का एस्टीमेटेड टाइम क्या है। हमेशा अराइवल एयरपोर्ट को ETA से रिपोर्ट करेंगे। ETA दिल्ली कितना, 1300, यानी 1 बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। सो दिस इज आवर पोजीशन रिपोर्ट। ठीक है, पहले हमने क्या किए, सारे पैरामीटर रिपोर्ट किए, और उसके बाद हमने क्या रिपोर्ट किया, वहां का एस्टीमेट्स, कि अभी तो हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, लेकिन इसके बाद हम पहुंचेंगे उकबाब 11 बजे, दीपास 12 बजे, चिलेरकी 12:30, और दिल्ली हम पहुंचेंगे 1 बजे। अब आप पूछोगे सर ये तो हम एग्जाम में हाइपोथेटिकल टाइम कैलकुलेट करके दे दिया अपने मन से, बट इन द एयर पायलट कैसे कैलकुलेट करता होगा? पायलट को अब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, FMS में सारे टाइम आपके प्री लोडेड आते हैं एज पर योर एयरक्राफ्ट स्पीड। बट पायलट भी कैलकुलेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला, कितना डिस्टेंस बाकी है और आपका स्पीड क्या है, आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। आई होप पोजीशन रिपोर्ट इज क्लियर टू यू। Is this clear to all? Then just have a look on example. ठीक है, एक एग्जाम्पल कॉल आएगा एंड दैट कॉल विल कम फ्रॉम अल्फा जूलियट डेल्टा। ठीक है, सो पापा रोमियो किलो विल ऑब्जर्व द आंसर। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए उसको पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नजर में रखते हुए जस्ट ऑब्जर्व द आंसर टाइप, कि हाउ दैट आंसर इज बीइंग गिवन। ठीक है, सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, चार्ट या
हाँ, अल्फा जूलियट डेल्टा प्लान कुछ भी रखो, आई नीड अ कॉल। ठीक है, क्वेश्चन सॉरी इज, सर, अभी मैं ऑन द वे हूँ सर, ऑफिस जा रहा हूँ, अच्छा अच्छा, नाइट शिफ्ट है, अभी ऑन द वे हूँ सर। ओके 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 ओके, ठीक है, यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व सियरा ऑस्कर होटल, गिव द कॉल अगेन, यू आर 20 नॉटिकल माइल टू उकबाब, यानी यू आर समहाउ एट दिस पॉइंट, ये ब्लू वाला पॉइंट, मैंने ब्लू वाला पॉइंट बनाया है चार्ट पे, प्लीज कंफर्म इफ दिस इज विजिबल। Then Sierra Oscar Hotel, please go ahead with the call. Victor Tango Sierra Oscar Hotel. ओके अच्छा, ओके ओके, अनम्यूट था ओके। दिल्ली कंट्रोल, एयर इंडिया 9021 on 124.55, Airbus 320, IFR Udaipur to Delhi, route Whiskey 13 North, radial 030, flight level 320, 20 DME, inbound Ukbab, estimating Ukbab 1110, Dipas 1140, ETA Delhi 1200. Chilerki is there in between. Oh, okay. Chilerki 12, correction 1150, ETA Delhi 1200, Air India 9021, time now भूल गया था मैं, टाइम नाउ भूल गया था। You say again, time now. टाइम नाउ 1100, एयर इंडिया 9021। Very good. Papa Romeo Kilo, have you got the call? समझ में आया? Yes, sir. ठीक है. This call has gone to Delhi control. How? Just have a look on the chart. हमने क्या कहा, इस ब्लू डॉट के ऊपर है, इस ब्लू डॉट में ना ही किसी का टावर है ना ही किसी का अप्रोच है, तो किसको कॉल करेंगे? आसपास एयरपोर्ट जो है उसके कंट्रोल को। देखो, ओवर दिस रेड डॉट वी आर इन द कंट्रोल बाउंड्री ऑफ दिल्ली। बीच में जयपुर पड़ता है लेकिन जयपुर के पास कंट्रोल है नहीं, तो कंट्रोल बाउंड्री किसका पड़ता है? दिल्ली का। यहां तक अहमदाबाद का कंट्रोल बाउंड्री कहां पे खत्म है? यहां पे खत्म है, जस्ट नियर अबव टू द एफआईआर बाउंड्री। तो कहां कॉल जाएगा? दिल्ली को। क्लियर? So this was the position report. Please do let me know if you have any doubt over position report. किसी टाइप का डाउट है? Yes, no, anything? नहीं सर। जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मैं सेक्टर में VOR कोड लिख दे रहा हूँ, चलेगा ना? बिल्कुल, VOR कोड विल वर्क। ठीक है, VOR कोड एज आई टोल्ड कि या तो आप पूरा नाम लिख सकते हो
जैसे दिल्ली का व्यूअर कोड है DPN, सो यू कैन राइट भोपाल का है BPL, तो दिल्ली टू भोपाल, या फिर आप लिखो VIDP टू VABP, ये भी चलेगा, या फिर आप पूरा भी लिख सकते हो दिल्ली टू भोपाल, जो लेकिन आपको सुटेबल पड़े। एक VOR कोड लिखा, एक पूरा लिखा, ये नहीं चलेगा। चलेगा, ये भी चलेगा, ठीक है, चलेगा। चलेगा, ओके। डन। सो नेक्स्ट कॉल IFR फॉर, नॉटिकल माइल क्या? से अगेन IFR है तो नॉटिकल माइल चलेगा, मतलब DME की नॉटिकल दोनों ही चलता है। हाँ, IFR है तो DME एंड नॉटिकल माइल दोनों चलेगा, बट जब VFR है उस टाइम पे DME नहीं चलेगा, उस टाइम पे ओनली नॉटिकल माइल, ठीक है। ओके। ठीक है, गुड वन। नाउ we'll move to our next topic regarding that is close to the position report only, that's why I am saying, ठीक है। next topic is air prox, ठीक है, air prox, top of descent and top of climb is known to you, please do let me know। अपर में किलो, नो सर। निगेटिव और अफर्म, नो या हाँ, क्या बोला पता नहीं चला। से इट नेगेटिव। अगेन, निगेटिव, ठीक है, कोई बात। पोजीशन रिपोर्ट हमने देखा, एयर रिपोर्ट और दिस वन, व्हाट यू से, एयर रिपोर्ट और पायलट रिपोर्ट, ये टॉपिक आप पार्किंग लॉट में लिख के रखो, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कॉल इन फ्रंट ऑफ अस विल बी टॉप ऑफ डिसेंट एंड टॉप ऑफ क्लाइंब, TOC एंड TOD। नाउ क्या होता है, अंडरस्टैंड अ फ्लाइट टाइप। हमारा एयरक्राफ्ट, ठीक है, हमारा एयरक्राफ्ट किसी एयरपोर्ट से, सपोज दीज टू आर द एयरपोर्ट्स A एंड B। जनरली अपना एयरक्राफ्ट क्या होता है, एप्रोन से रनवे तक आया, टेक ऑफ किया, क्लाइंब किया, क्रूज, डिसेंड, लैंड एंड अगेन सेट टू द एप्रोन, यही फेजेज होते हैं, ठीक है। अभी देखो, ये वाला पोर्शन कहलाता है क्लाइंब फेज, और ये वाला पोर्शन कहलाता है डिसेंड फेज, और इसके बीच में जो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट है इसको बोलते हैं क्रूज, ठीक है, क्रूज या फिर स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट। एम आई क्लियर सो फार? अब सो अभी देखो, नाम से क्लियर है एक टर्म, टॉप ऑफ क्लाइंब TOC, टॉप ऑफ डिसेंड, क्लाइंब फेज का टॉप कहां, यहां पे टॉप ऑफ क्लाइंब, और डिसेंड फेज का टॉप कहां, यहां पे टॉप ऑफ डिसेंड। So basically the top of climb and top of descend are the two positions, जो कि क्लाइंबिंग फेज का टॉप पोजीशन है, और टॉप ऑफ डिसेंड आपके डिसेंडिंग फेज का टॉप पोजीशन है, यानी क्रूज का स्टार्ट और क्रूज का टर्मिनेशन पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को बोला जाता है टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड। टॉप ऑफ क्लाइंब मींस आप वहां से क्रूजिंग स्टार्ट करते हो, और टॉप ऑफ डिसेंड मींस आप वहां पे क्रूजिंग खत्म करते हो। सो बेसिकली दीज टू आर द पोजीशंस, लेकिन इनको रिपोर्ट किया जाता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम, इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम फ्रेम। कल हमने पढ़ा था ना डिपार्चर रिपोर्ट, राइट, आपने ध्यान दिया होगा। सो आई एम गिविंग अ डिपार्चर रिपोर्ट, वहां से आपको पता चलेगा कि हाउ द टॉप ऑफ क्लाइंब कैन बी रिपोर्टेड। हमने बोला मुंबई टावर, ठीक है, विस्तारा 789er ऑन 123.5, एयरबस 320, IFR मुंबई टू भोपाल, ठीक है, डिपार्टेड मुंबई, ठीक है, फ्रॉम रनवे
27 at 1030, 10:30 बजे हमने मुंबई से डिपार्चर ले लिया। पासिंग 1800 फीट, 1800 फीट अभी पास कर रहे हैं। फॉर फ्लाइट लेवल 320, 32,000 फीट तक जाएंगे। पासिंग 1800 फीट, 1800 फीट, ठीक है, 1800 फीट फॉर फ्लाइट लेवल 320। टाइम नाउ 1035, अभी बज रहे हैं 10:35, 10:30 में हमने डिपार्चर किया, अभी 10:35 हो रहे हैं। टॉप ऑफ क्लाइंब 1055, यानी हम अपने टॉप ऑफ क्लाइंब, हमारा टॉप ऑफ क्लाइंब क्या है, हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड 32,000 फीट। सो हम अपने टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंच जाएंगे 10:55 पे। बाय द वे दैट इज अ पोजीशन, बट वी विल रिप्रेजेंट इट इन द रेफरेंस ऑफ टाइम, कि अभी 10:35 में हम 1800 फीट पे हैं, 10:55 पे हम अपने टॉप ऑफ क्लाइंब पर होंगे। हमारा टॉप ऑफ क्लाइंब हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड है। इज दैट क्लियर? Clear. सर पापा टॉप में ऑफ किलो, इज दैट हाँ हाँ टॉप ऑफ हाँ क्लाइंब जो है उसमें से अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है कि मतलब कितना है, मतलब वही क्रूजिंग फ्लाइट लेवल है तो वही मेन है ना। हाँ, उसका टाइम मेन है कि हम टॉप ऑफ क्लाइंब पे पहुंचेंगे कब, उसका अल्टीट्यूड रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप यहां पे ये भी बोल सकते हो पासिंग 1800 फीट, ये मत बताओ कि हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड है 32,000 फीट। करेंटली वी आर पासिंग 1800 फीट और अभी टाइम हो रहे हैं 10:35। हम अपने टॉप ऑफ क्लाइंब पे कब पहुंचेंगे? 10:55 पे। और हमारा टॉप ऑफ क्लाइंब क्या रहता है? जो अल्टीट्यूड हमारे फ्लाइट प्लान में दिया रहता है, जो कि हमारा क्रूजिंग अल्टीट्यूड है। क्रूज से ऊपर क्लाइंब नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि वहां पे हमने डिसाइड किया कि क्लाइंब करके फिर स्ट्रेट फ्लाई करेंगे। तो मैक्सिमम अल्टीट्यूड आपका क्या है? आपका क्रूजिंग अल्टीट्यूड। तो इस पोजीशन पे आप किस टाइम पहुंचोगे उसको बोलते हैं टॉप ऑफ क्लाइंब का रिपोर्ट, कि हम अपने क्लाइंबिंग फेज के टॉप पे पहुंचेंगे 10:55 पे। अभी हम 1800 फीट पे रहे यहां और अभी बज रहे हैं 10:35। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, so this is the reporting of top of climb. Top of climb you can only report when you are in initial climbing phase. जब आप इनिशियल क्लाइंबिंग फेज पे रहते हो तभी आप टॉप ऑफ क्लाइंब रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जनरली आपको पोजीशन रिपोर्ट में टॉप ऑफ क्लाइंब का रिपोर्टिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप ये रिपोर्ट करोगे पासिंग 700 फीट, पासिंग 800 फीट और पासिंग 7,000 फीट फॉर फ्लाइट लेवल सो एंड सो, फॉर फ्लाइट लेवल 310, तो उस केस में आप टॉप ऑफ क्लाइंब जरूर से जरूर रिपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि जब आप इनिशियल क्लाइंब में रहोगे तभी आप टॉप ऑफ क्लाइंब रिपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद फिर टॉप ऑफ क्लाइंब का कोई मतलब ही नहीं रह गया। डन? यस सर। ठीक। नाउ नेक्स्ट वन वाज टॉप ऑफ डिसेंड। अब इसका क्या मतलब है, इस पे भी कॉल देखते हैं। सपोज आपका मुंबई से भोपाल का फ्लाइट था, ठीक है, ये वाला फ्लाइट मुंबई से भोपाल का ही है। क्वेश्चन में आया यू आर 20 नॉटिकल माइल टू भोपाल, यानी भोपाल पहुंचने वाले हैं हम। इस केस में रिपोर्ट होगा टॉप ऑफ डिसेंड। कैसे? जस्ट हैव अ लुक। भोपाल अप्रोच, टेक एन एग्जांपल, भोपाल के पास खाली टावर ही है, बट मैं एक हाइपोथेटिकल कॉल दे रहा हूं कि कॉल आप हमेशा उसी एटीसी को दोगे जो राइट एटीसी है, बट अभी मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, एटीसी वाला बाद में देखेंगे। भोपाल अप्रोच विस्तारा 789er ऑन 124.65 एयरबस 320 IFR मुंबई टू भोपाल। ये आपका बेसिक प्लान है। फ्लाइट लेवल 320 ये हो गया हमारा लेवल। रूट हो जाएगा विस्की 13 ईस्ट फॉर एन एग्जांपल, रेडियल 045,
20 DME क्वेश्चन में लिखा है इनबाउंड भोपाल, भोपाल से 20 नॉटिकल माइल ही दूर हूं, पहुंच जाऊंगा कुछ देर में। टाइम नाउ 1040, अभी बज रहे हैं 10:40। टॉप ऑफ डिसेंड 1045, रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस टू लैंड एट भोपाल, ठीक है, टू लैंड एट भोपाल। अभी 10:40 पे मैं इस करेंट पोजीशन पे फ्लाई कर रहा हूं। अगले 5 मिनट बाद मैं डिसेंड स्टार्ट करूंगा, मैं अपना अल्टीट्यूड कम करना शुरू कर दूंगा। तो उस अल्टीट्यूड पे हम कब पहुंचेंगे? 10:45 पे हम टॉप ऑफ डिसेंड पे होंगे, यानी डिसेंड के आखिरी स्टेज पे होंगे, डिसेंड के फर्स्ट स्टेज पे होंगे। 10:45 पे हम डिसेंड स्टार्ट करेंगे। सो माय टॉप ऑफ डिस्टेंस विल बी 1045। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? अभी हम भोपाल से 20 नॉटिकल माइल दूर हैं, ये ग्रीन वाले पोजीशन पे। 10:40 हो रहे हैं। 5 मिनट बाद हम अल्टीट्यूड कम करना शुरू करेंगे, यानी हम डिसेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम डिसेंड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा टॉप ऑफ डिसेंड क्या है? हमारा टॉप ऑफ डिसेंड होगा 10:45, यानी 5 मिनट बाद हम अल्टीट्यूड कम करना शुरू कर देते हैं। इज दिस क्लियर? क्लियर। ठीक है पापा रोमियो किलो, क्लियर? Yes, sir. नहीं समझ में आया? देन यू कैन आस्क वन मोर टाइम, डोंट वरी। इज दिस क्लियर और नॉट? हाँ सर। ठीक है। देन वी हैव सीन टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड। टॉप ऑफ क्लाइंब का यूज कब आएगा? जब हम इनिशियल क्लाइंबिंग के कॉल में रहेंगे तभी। बाकी के पोजीशन रिपोर्ट में आपको टॉप ऑफ क्लाइंब नहीं मिलेंगे। सो इनिशियल क्लाइंब के कॉल में टॉप ऑफ क्लाइंब आप रिपोर्ट कर पाओगे। एंड जब आप नियर टू योर अराइवल एयरपोर्ट रहोगे तब आप टॉप ऑफ डिसेंड रिपोर्ट कर पाओगे। बाकी हर जगह टॉप ऑफ क्लाइंब और टॉप ऑफ डिसेंड का रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉप ऑफ क्लाइंब एंड टॉप ऑफ डिसेंड। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर प्रॉक्स। ठीक है, आज हम लोग एयर प्रॉक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक क्लोज्ड। जितना पढ़े उसी का प्रैक्टिस करेंगे। एयर प्रॉक्स, एयर प्रॉक्स क्या होता है? सबसे पहले प्रॉक्स का मतलब है यहां पे प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अब हम एक फ्लाइट इनवेलप को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जब आपको किसी भी टाइप का फ्लाइट प्लान का अप्रूवल मिलता है तो उस केस में आपके आसपास एक फ्लाइट इनवेलप खाली रखा जाता है। वो फ्लाइट इनवेलप क्या है? हैव अ लुक। आपके आगे पीछे, ठीक है, ये क्रूजिंग कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। डिसेंड और लैंडिंग के टाइम पे किसी भी टाइप का फ्लाइट इनवेलप काम नहीं करता है। ट्रैफिक को देखते हुए कोई दो एयरक्राफ्ट कितना भी क्लोज और कितना भी दूर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक। बट जब आप क्रूज कर रहे होते हो उस टाइम पे 20 नॉटिकल माइल आगे और 20 नॉटिकल माइल पीछे, लॉन्गिट्यूडनली 20 नॉटिकल माइल, ठीक है, ध्यान रखो, लॉन्गिट्यूडनली 20 नॉटिकल माइल, लेटरली 15 नॉटिकल माइल, 15 नॉटिकल माइल बायां या दायां, लेफ्ट राइट। ठीक है, लेटरली 15 नॉटिकल माइल, वर्टिकली, ठीक है, अबव और बिलो। वर्टिकली अगर आप आरवीएसएम एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हो तो 1000 फीट, और अगर आप नॉन आरवीएसएम एयर स्पेस में फ्लाई कर रहे हो तो 2000 फीट। वर्टिकली 2000 फीट टॉप और डाउन, बिलो, इतना एयर स्पेस आपके लिए खाली रखा जाता है। इस एयर स्पेस में कोई भी एयरक्राफ्ट एंट्री नहीं करेगा। आरवीएसएम एयर स्पेस का क्या मतलब है? फ्लाइट लेवल 290 से 410
29,000 फीट से 41,000 फीट तक अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो आपके 1,000 फीट ऊपर और 1,000 फीट नीचे कोई एयरक्राफ्ट नहीं होगा। अगर आप इसके ऊपर और इसके नीचे यानी 28,000 से नीचे और 41,000 से ऊपर फ्लाई कर रहे हो तो 2,000 फीट अबव एंड बिलो कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं होगा। इतने जोन को बोलते हैं फ्लाइट इनवेलप। तो ये वाला एयर स्पेस आपके आगे पीछे खाली रखा जाता है क्रूजिंग के केस में। बट अगर फ्लाई करते टाइम इस एयर स्पेस में कोई भी एयरक्राफ्ट आपको नजर आया बिना एटीसी के इन्फॉर्म किए, यानी एटीसी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है कि सम एयरक्राफ्ट इज पासिंग नियर यू, कोई एयरक्राफ्ट ओवरटेक करेगा आपको, कोई एयरक्राफ्ट आपके पास से गुजरेगा, अगर बिना आपके इंफॉर्मेशन के कोई भी एयरक्राफ्ट आपके फ्लाइट इनवेलप में एंट्री किया तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं एयरप्रॉक्स ये वाला जहाज हमारे फ्लाइट इनवेलप में क्यों आया। ठीक है, सपोज आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तो वो बता के आते हैं, सो यू कैन वेलकम देम। बट इफ समवन इज कमिंग अननोइंगली एंड दे आर बिहेविंग बैडली, सो यू कैन रिपोर्ट टू पुलिस कि वो हमारे घर में क्यों आया। सिमिलरली इफ एनीवन इज कमिंग अननोइंगली तो इसको रिपोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयरप्रॉक्स, वो हमारे नजदीक आ गया, क्यों आया भाई और कितना नजदीक आया, इसके एक कैटेगरी होते हैं। ठीक है, सो एयरप्रॉक्स का कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है, जस्ट हैव अ लुक। एयरप्रॉक्स के 4 कैटेगरी बेस्ड ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस 4 कैटेगरी। सबसे पहला, अगर कोई एयरक्राफ्ट हमारे प्रॉक्सिमिटी में आया एंड दैट डिस्टेंस इज लेस देन 3 नॉटिकल माइल तो उस केस में बोलेंगे एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन। ठीक है, एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन, कोई एयरक्राफ्ट हमारे इतना नजदीक आ गया कि कोलिजन का डर आ गया हमको, तो दैट डिस्टेंस इज लेस देन 3 नॉटिकल माइल। अगर कोई एयरक्राफ्ट 3 से 5 नॉटिकल माइल नजदीक आ गया तो उस केस में बोलेंगे एयरप्रॉक्स सेफ्टी नॉट अश्योर्ड, एयरप्रॉक्स सेफ्टी नॉट अश्योर्ड। और अगर कोई एयरक्राफ्ट 5 से 10 नॉटिकल माइल के बीच में आया उस केस में बोलेंगे एयरप्रॉक्स बट नो रिस्क ऑफ कोलिजन, एयरप्रॉक्स तो है लेकिन कोलिजन का कोई खतरा नहीं है। फिर भी वो क्या कर रहा था, सपोज रात में आपके घर के आसपास कोई पैदल चल रहा है, सो यू कैन रिपोर्ट टू पुलिस कि वो अकेला आदमी रात में हमारे घर के आसपास मूव कर रहा था। हो सकता है कि वो अच्छा हो बुरा हो या अपने पर्सनल रीजन से घूम रहा हो, लेकिन आधी रात में या मिडनाइट हमारे घर के आसपास कोई क्यों ट्रेवल करेगा, कोई क्यों मूव करेगा। सो सिमिलरली 5 से 10 नॉटिकल माइल में कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे प्रोक्सिमिटी में क्यों आया, एयरप्रॉक्स, हालांकि नो रिस्क ऑफ कोलिजन। एंड फोर्थ वन इज रिस्क नॉट डिटरमाइंड, और ये तब होगा जब आपको डिस्टेंस पता नहीं चलेगा। अब आप बोलोगे सर इन द एयर 10 नॉटिकल माइल जो है दिस इज ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर, सो 18 किलोमीटर का एरिया क्या कॉकपिट से दिख पाएगा, नहीं। और वैसे भी ये डिस्टेंस कहां लिखा रहेगा, these distances will be given in the question or you can observe in your TCAS। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस मेंशन नहीं है तो हम बोलेंगे एयरप्रॉक्स रिस्क नॉट डिटरमाइंड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस लिखा है कि 7 नॉटिकल माइल, 4 नॉटिकल माइल, 5 नॉटिकल माइल, तो इन तीनों कैटेगरी में से कोई एक एयरप्रॉक्स का कॉल दे देंगे। अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं है तो हम लोग सीधे बोलेंगे रिस्क नॉट डिटरमाइंड। हालांकि इन रियल लाइफ कोई भी एयरक्राफ्ट अगर आपके प्रॉक्सिमिटी से पास करता है तो टीकैस स्क्रीन पे आपको जरूर से जरूर दिख जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी एयरक्राफ्ट आपके प्रॉक्सिमिटी से पास करेगा, लुक एट द टीकैस स्क्रीन। ठीक है, देखो दीज रेड डायमंड, व्हाइट डायमंड, येलो सर्कल, दीज आर द ट्रैफिक, और ये टीकैस का डिस्प्ले पेज है। ये आपको आर्क दिख रहा है,
आर्क, टोटल 3 आर्क में डिवाइडेड है। पहला आर्क है 5 नॉटिकल माइल का, दूसरा आर्क है 10 नॉटिकल माइल, तीसरा है 15 नॉटिकल माइल। सो अगर कोई हमारे 5 नॉटिकल माइल के आर्क में आया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोलिजन थ्रेट, रिजोल्यूशन एडवाइजरी आ गया कि ये एयरक्राफ्ट आपके लिए घातक है। तो 5 नॉटिकल माइल के अंदर आ गया, सेफ्टी नोट एश्योर्ड। 3 नॉटिकल माइल के भी अंदर आ गया तो डायरेक्ट एयर प्रॉक्स क्या होगा, रिस्क ऑफ कोलिजन। और अगर कोई 10 नॉटिकल माइल के अंदर है सो दैट इज पोटेंशियल थ्रेट, कि हो सकता है वो हमको आके टक्कर मार दे, तो उस केस में सेफ्टी नोट एश्योर्ड। एंड अगर कोई हमारे 10 नॉटिकल माइल से भी बाहर गुजर रहा है, वो हमारे प्रॉक्सिमिटी में आया बट वो हमारे लिए खतरा नहीं है, तो देखो लिखा रहेगा नो थ्रेट। लेकिन फिर भी वो एयरक्राफ्ट हमारे क्लोज क्यों आया, इस चीज को हम रिपोर्ट करेंगे। किसको, एटीसी को। इज दिस क्लियर? तो एयरप्रॉक्स के ओके सर। तो एयरप्रॉक्स के कितने कैटेगरी, 4। कौन कौन से, अगर कोई एयरक्राफ्ट लेस देन 3 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस से पास किया तो क्या बोलेंगे, से अगेन क्या बोलोगे, एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन। रिस्क ऑफ कोलिजन, वेरी गुड। अगर कोई 3 से 5 नॉटिकल माइल के बीच पास करे देन एयरप्रॉक्स सेफ्टी नॉट एश्योर्ड। सेफ्टी नॉट एश्योर्ड, वेरी गुड। और कोई 5 से 10 नॉटिकल माइल के बीच में क्रॉस करे देन नो रिस्क ऑफ कोलिजन। एयरप्रॉक्स नो रिस्क ऑफ कोलिजन। और अगर डिस्टेंस का पैरामीटर क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है तो रिस्क नॉट डिटरमाइंड। हाँ, एयरप्रॉक्स, इन सारे जो भी आपने फ्रेजेस बोले उन सब का प्रीफिक्स होना चाहिए एयरप्रॉक्स। एयरप्रॉक्स रिस्क ऑफ कोलिजन, एयरप्रॉक्स सेफ्टी नॉट एश्योर्ड, एयरप्रॉक्स नो रिस्क ऑफ कोलिजन, एयरप्रॉक्स रिस्क नॉट डिटरमाइंड। क्लियर? सो अभी हम एक फ्लाइट प्लान उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। हमारा फ्लाइट प्लान है उदयपुर टू दिल्ली, राइट? अभी क्या है, जस्ट हैव अ लुक, उदयपुर टू दिल्ली। हम लोग इस रेड डॉट के पोजीशन पर हैं, ठीक है? और क्या हुआ कि कोई एयरक्राफ्ट आपको इधर से आके राइट से ऐसा ओवरटेक कर दिया। जो ग्रीन कलर का लाइन बना रहा हूं ना, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ वन सडन फ्लाइट। कोई एयरक्राफ्ट ऐसा क्रॉस करके चला गया आपको, तो ये आपका एयर स्पेस का वायलेशन है। इसको आप एयरप्रॉक्स से रिपोर्ट करोगे, ठीक है? तो कैसे रिपोर्ट हो सकता है, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन में रहेगा कैसे, क्वेश्चन में रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेगा उसमें पोजीशन रिपोर्ट हिडन है। एयरप्रॉक्स के कॉल में पोजीशन रिपोर्ट हिडन है, तो कैसे कॉल जाएगा, जस्ट हैव अ लुक। आपको क्वेश्चन रहेगा इस रेड डॉट के बारे में। क्वेश्चन कैसा रहेगा, यू आर, ठीक है, यू आर 30 नॉटिकल माइल टू उकबाब, यानी जब आप उकबाब पहुंचने वाले थे, आप 30 नॉटिकल माइल दूर थे। वन इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट ओवरटेकन यू, क्वेश्चन नोट करो, ओवरटेकन यू फ्रॉम राइट, राइट से आपको ओवरटेक किया, एंड मेड अ शार्प टर्न, मेड अ शार्प टर्न ahead of you, ahead of you at 4 nautical mile। अब यही अगर 4 nautical mile क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हो जाएगा रिस्क नॉट डिटरमाइंड, और यहीं पे अगर डिस्टेंस लिख दिया तो ऊपर के 3 कैटेगरी में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दिस क्लियर? सो हाउ द कॉल कैन गो, हैव अ लुक। ये वाला एयर स्पेस है दिल्ली कंट्रोल का। सो दिल्ली कंट्रोल
Vistara 789er on 124.55, Airbus 320, IFR उदयपुर टू दिल्ली, ठीक है। करेंट पोजीशन, हमेशा करेंट पोजीशन, फ्लाइट लेवल 320, विस्की 13 नॉर्थ, रेडियल 030। क्वेश्चन में क्या है, 30 DME टू उकबाब, सो 30 DME इनबाउंड उकबाब, टाइम नाउ 1040। एयरप्रॉक्स, ठीक है, 4 नॉटिकल माइल है ना। एयरप्रॉक्स सेफ्टी नॉट अश्योर्ड, क्यों भैया, क्यों आपका सेफ्टी अश्योर्ड नहीं है? सेफ्टी नॉट अश्योर्ड, क्यों सेफ्टी नॉट अश्योर्ड? 1 इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, पूरा डिटेल में, 1 इंडियन एयरफोर्स IAF एयरक्राफ्ट ओवरटेकन फ्रॉम राइट से उसने हमको ओवरटेक किया, एंड जैसा क्वेश्चन में लिखा है, मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस, हमारे सामने से शार्प टर्न कर दिया, मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस। डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी कंसीडर करके एयरप्रॉक्स का कैटेगरी कॉल दे दिया है। मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस, रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन, पता करिए कि क्यों आ गया हमारे पास से, टक्कर मार देता तो। और वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम ऑफ इंसिडेंस, ये वाला घटना कब घटा, जो आपका करेंट टाइम है उससे 2-3 मिनट पहले, 1038, विस्तारा 789er। क्या कहा हमने? एयरप्रॉक्स सेफ्टी नोट एश्योर्ड, पोजीशन रिपोर्ट देने के बाद एयरप्रॉक्स सेफ्टी नोट एश्योर्ड, एक इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट आया और राइट से ओवरटेक किया, कहां से पता लगा? क्वेश्चन से, एंड मेड अ शार्प टर्न अहेड ऑफ अस, ये भी क्वेश्चन में दिया है। रिक्वेस्ट इन्वेस्टिगेशन, क्यों आया ये एयरक्राफ्ट, टाइम ऑफ इंसिडेंस 1038, 10:38 पे ऐसा हमको देखने को मिला। समझ में आया एयरप्रॉक्स का कॉल? Yes, no, anything? Is this clear? अब देखो, अभी हमने एयरप्रॉक्स के कॉल देखे। What we had observed कि in this call position report is the hidden report. अपकमिंग ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे जिसमें पोजीशन रिपोर्ट एक हिडन रिपोर्ट है। अगर आप उस कॉल में पोजीशन रिपोर्ट करोगे तो हो सकता है आपको कोई स्पेशल नंबर नहीं मिले, ठीक है, क्योंकि पोजीशन रिपोर्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। आपको किसी ने ओवरटेक किया, कहां पे, कहां थे आप? तो हम इस पोजीशन पे थे। तो इस कॉल में पोजीशन रिपोर्ट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन विच इज हिडन, ठीक है, हिडन रिपोर्ट है, यानी आपको पोजीशन रिपोर्ट करना ही करना है। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आपको आगे मिलेंगे जिसमें पोजीशन रिपोर्ट आपको करना ही करना है, ठीक है, बट आपको पोजीशन रिपोर्ट का कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन गलती से अगर वैसे कॉल में आपने पोजीशन रिपोर्ट नहीं किए तो आपका नंबर जरूर कटेगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कॉल्स आपको मिलेंगे जहां पे पोजीशन के हिंट रहेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 30 नॉटिकल माइल टू उकबाब, ये हमारा एक पोजीशन का हिंट हो गया, राइट, कि आप उकबाब से 30 नॉटिकल माइल अंदर की तरफ हो। सो इस ऐसे कॉल में पोजीशन रिपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आप करोगे तो हो सकता है स्पेशल नंबर नहीं मिले, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो नंबर कटेगा जरूर, ठीक है। तो पोजीशन रिपोर्ट को अच्छे से समझना है और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वाइटल रिपोर्ट है पोजीशन रिपोर्ट। एम आई क्लियर सो फार? समझ में आया सबको? हाँ, affirm. ओके, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही काफी है, ठीक है।
3 concept a day is much enough. ठीक है. Tomorrow we'll have a look on radio communication failure procedure. ठीक है. हमारा रेडियो कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे. ठीक है. और हमने अभी तक रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर तक ही पढ़ा है. तो आज तक हमने जो कवर किया उसमें एक टॉपिक और बाकी है. बाकी के सारे टॉपिक हमने कवर अप कर दिए. इन द अब्सेंस ऑफ यू वी हैड only detailed the position report, top of climb, top of descent and अपना तीसरा एयर प्रॉक्स. और इसके अलावा हमने पढ़ा था आरसीएफ. तो आरसीएफ बाकी है. बाकी की तीनों कॉल्स हमने आज देख लिए. उसके अलावा बाकी सारे दिन हमने प्रैक्टिस किए थे. ठीक है. सो एनी हाउ वी हैड मैच्ड बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स. ठीक है. दोनों टाइप के कैंडिडेट्स का लेक्चर टाइप हमने मैच करा दिया है. So tomorrow onwards we'll have a look on radio communication failure procedure and further more topics. If we can do, we can proceed further. Clear? So आज के लिए इतना ही. ज्यादा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो भी आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेगा. ठीक है. कवर अप करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि एक ही दिन में सारा पढ़ा दूं, फिर आप सारा भूल जाओगे. So आज के लिए इतना ही. That's all for today and we'll meet again tomorrow. ठीक है. So we had covered till lecture 12. Done. Yes, no, anything? Yes. ठीक. So that's all for today. We'll see you tomorrow. Same time 9 o'clock with upcoming topics and furthermore mock-ups and practices. That's all for today. Good night, everyone. Good night.